देखिए हमें मीज़ान इज़ अ पाकिस्तानी बैंक. We are focused on Pakistan, and at the moment I can tell you that Mizan has no plans of going offshore, of opening branches because of various reasons. जी जी Okay, the world has changed, the compliance environment has changed. Okay, so Pakistan के context में अगर हम बात करते हैं, तो I think brick and mortar is still very relevant, and I feel that will remain relevant for the at least 10 years. आई एग्री विद यू Okay, but you need to make sure that you are able to give your customer, okay, the experience that the customer wants through digital channels. जी Mobile app is one example, right? And it will keep refining itself. जी आज आप अगर मोबाइल ऐप पे बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, और आप करते हैं, मैं भी करता हूँ. आप किसी को पैसे देने हैं तो आप कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे, राइट? बट द फंक्शनैलिटी इज लिमिटेड. आई थिंक इंक्रीजिंगली द फंक्शनैलिटी विल इंक्रीज. ओके, बट टुडे customers still want to walk into a branch. बिल्कुल They सही बात है still want a trusted brand. जी You know, State Bank of Pakistan announced a few years ago that they would issue digital banking licenses, DRBs. आपके इल्म में होगा. जी 4-5 बैंकों में शायद मिले भी Okay, लाइसेंस यहाँ और उस वक्त इसमें शायद मीज़ान ने ट्राई नहीं किया या उनके नहीं, मैं पॉलिसी की उसी थी उसी पे जी आ रहा हूँ, उसी जी बात पे आ रहा हूँ. सो इनफैक्ट स्टेट बैंक ने हमें कॉल भी किया, जो वी वुड वांट मीज़ान टू अप्लाई. ओके, देयर वाज प्रेशर फ्रॉम मीज़ान को इग्नोर तो कर नहीं सकते स्टेट बैंक के भी जी मीज़ान बैंक टू अप्लाई. हमने एक टास्क फोर्स बनाया, and we had some senior people in there. Ali Imran was also in that task force. We had some commercial banking people in the task force. हमने उनको task ये दिया जो we want you to study digital banking experiences, neobanks around the world, not just neobanks, but different segments of digital banking, you know, um, around the world, and then give us a report, and then we'll discuss it. And I think they did a very good job. उन्होंने बड़ा comprehensive काम किया, बहुत research किया, कुछ young बच्चे थे उनके साथ. आजकल तो फिंगर टिप्स पे हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है. And on the basis of that report, we had some very in-depth discussions on our round table in the boardroom. And we took a decision not to apply for the digital banking license. अच्छा उसकी वजह ये है जो we felt that there is nothing that Mizan Bank cannot do. विदाउट डिजिटल बैंक There is nothing that we cannot do, and for which we will need a digital license. We can do everything that a digital banking license can give us today. बात तो सही है आपकी Okay, so हमने ये डिसाइड किया जो भाई we will adopt a path of digital transformation. And we were inspired by a number of banks around the world. I mean, and give you some names. There's some Chinese banks. Prominent name is Development Bank of Singapore, DBS. आपने DBS का नाम यकीनन सुना होगा. जी बिल्कुल One of the most successful banks that went from being the worst bank in Singapore to the best bank in Singapore. They transformed themselves digitally, right? So a very, very interesting case studies on DBS. There's lots been written about Payush Gupta, the CEO, and how he pursued the digital transformation agenda. You know, lot of good learning. हमने इस पे case studies internally भी run किया, and we have now at Mizan Bank created a separate digital transformation team, which is headed by Sharik Mubin, and that team is pursuing the agenda of digital transformation. अच्छा Okay, so the वो objective हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे है absolutely उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है, right? But the question is that I think you have to be realistic. I think बोर्ड में भी ये कभी कभी सवाल होता है जो यार आप ब्रांचेस अभी भी क्यों खोल रहे हैं, you know. आपने अभी जैसे जिक्र किया जो the banks around the world which are closing down branches, right? And but every country has a different demographic, you देखिए know. ब्रांच नेटवर्क का फायदा बहुत है Yes. जो आपको याद होगा 2019 वगैरह में मेरे जिम्मे काम लगाया गया था कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी रिमोट एरिया ब्रांचेस हैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करनी थी ये तो पश्तून बेल्ट भी बलूच बेल्ट थी और मुझे बड़ी हैरत हुई वो हमारे जो दोस्त है साहब साहब ये एरिया मैनेजर उनके साथ में गया था. अब यकीन करें जहाँ भी हम चौकी से गुजरते थे और जब भी बताते थे भाई कौन है तो खैर वो तो बड़े उससे कहते थे कि मेजर है साहब ठीक है तो अव्वल तो सीट छुट्टी जाती थी किसी ने अगर पूछा भी कौन से मेजर तो कहते थे जनरल मेजर मीज़ान बैंक तो फौरन शूट कर ऐसा होता तो मैं मीज़ान बैंक की वहाँ पे बड़ी इज्जत थी रिमोट एरिया के अंदर भी
फौजी चौकी वगैरह का भी बड़ा आसान था वहाँ पे हमें उसको करना। हाँ, चूँकि वहाँ पे जी, इस्लामिक बैंकिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। जी। तो सो द आई एम ब्रांच सॉरी, हम इसके भी बात दोबारा आ जाएँ। मुझे जो थोड़ी-सी एक कभी कमी महसूस होती है कि ब्रिक एंड मॉर्टर जो है पर्सनलाइज़्ड बैंकिंग यकीनन रहेगी, कोई वजह नहीं है, लेकिन इसके ड्यूल साइड भी होते हैं कि बाज़ औक़ात ये है कि काउंटर के ऊपर बेपनाह लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, राउडी आते हैं। उसका हल जो था एटीएम था। अच्छा, बाहर आपको मालूम है कि ये हुआ है कि उन्होंने भी काउंटर पे पेमेंट लोगे तो पैसे ज़्यादा देने होंगे, एटीएम पे लोगे पैसे फ्री होंगे। हमारे यहाँ उसके भी मसाइल हैं। हमारे पास एक इतना बेहतरीन जो सॉल्यूशन है, आई एम सॉरी टू से, उसको इस तरीके से कैश नहीं किया गया जितने के करना चाहिए था, और हमारे काफ़ी कस्टमर का इस पे मोबाइल फ़ोन पे आ जाना चाहिए। आज भी बहुत से लोग हैं जो मोबाइल मोबाइल फ़ोन ऐप के ऊपर कम ट्रस्ट करते हैं, और चेक लेके जाना और वहाँ कैश करना या एटीएम से निकालना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है जो कोविड, कोविड में आपको पता है, और मैं जी, जी, कोविड तो बिल्कुल दुनिया तब्दील कर दी उसने। कोविड कोविड से पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हम तो ब्रांचेस को इंसेंटिव देते थे, रिवॉर्ड था जो भी आप इतने इंटरनेट बैंकिंग साइन अप्स आप करेंगे, मोबाइल बैंक रजिस्ट्रेशंस कितने आप कर रहे हैं, दे वर गिवन टारगेट्स, राइट? एंड वी वर स्ट्रगलिंग टू इंक्रीज आवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द मोबाइल ऐप एंड इंटरनेट बैंकिंग। कोविड के दिनों में we had an unbelievable spike, right? Because customers were forced to adapt the जी, digital बिल्कुल, बिल्कुल, channels, जी। right? Branches were not open; they did not want to go out. So that was uh, a, पॉज़िटिव साइड। a positive, I would say, a positive outcome of COVID, जी। right? But once customers got the confidence, जैसे आज आपने खुद कहा जो भी मैं मोबाइल ऐप यूज करता हूँ, सर मैं तो डेमो से कर रहा हूँ। जी हाँ, हाँ, तो लेकिन देखिए कस्टमर जो है ना वो मोबाइल ऐप पे क्यों नहीं आते हैं, जी। ओके? एक तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, यू नो देर इज अ फियर दैट यार कुछ पता नहीं, मेरा अकाउंट ये मोबाइल बैंक हैक हो जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे निकल आएंगे, राइट? नाउ यू आर अ मोबाइल बैंक कस्टमर, इंटरनेट बैंकिंग मिजान बैंक में हमारे पास है सिंस 2005-6 वी इम्प्लीमेंटेड इंटरनेट बैंकिंग। अल्लाह का शुक्र है आज भी द इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड ऑन इंटरनेट बैंकिंग इज इज वेरी लो। बिल्कुल सही जो बात है। जो और जो मिनिमम कस्टमर का ही इसमें हाथ होता है कि अपना जो जो फ्रॉड हुए ना वो है जो आपके मोबाइल फोन पे कॉल आया जो जी आपका लॉट, कंप्रोमाइज़ कर दिया हाँ, घबरा के आदमी ने। दैट भाई यू नो मैं हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, एटसेट्रा जी, एटसेट्रा। जी, जी। सो द पॉइंट इज दैट इट इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर चैनल, जी, जी। राइट? बट पीपल स्टिल हैव इट इन देयर माइंड दैट यार पता नहीं क्या हो जाएगा। जी। दैट्स व्हाई दे प्रेफर, यू नो, दैट यार मैं चला जाता हूँ, चेक लेके जाता हूँ। बट दिस इज चेंज। देखिए जो यंग तबका है ना आपका, राइट, दे डोंट हैव दैट फियर, दे थिंक वेरी डिफरेंटली। भाई वो घर बैठे मोबाइल फोन से बिल्कुल। आधे घंटे में हर काम कर लेते हैं, बाहर काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, जी। यहाँ पे बैठ के वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, देयर होल सही। लाइफ इज ऑन बिल्कुल, ऑन दिस बिल्कुल। डिवाइस। सो दैट होल लैंडस्केप इज चेंजिंग। सर ये मैंने सवाल सिर्फ़ आपसे इसलिए किया, ना आप मीज़ान बैंक में ना मैं मीज़ान बैंक में हूँ। लेकिन मुझे फ़ील ये होता है कि आप हर चीज़ कोर बैंकिंग स्टाफ पे नहीं छोड़ सकते हैं। वो जो ब्रांच मैनेजर है, बीएसओ है, अब ये जो अवेयरनेस क्रिएट करना है उसके लिए एक आपको एक सब्सिडी टीम मैं समझता हूँ कि जो मीज़ान के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी आप एक फ़ोर्स तैयार करें, उनके फैमिली तैयार करें, जिनका काम ही हो कि बाहर बैठ के जो है इस किस्म के काम होते हैं, मसलन रसीदें भरना, ठीक है, लोगों की। अब ज़ाहिर है कि आपका रूल तो अलाउ नहीं करते हैं कि अंदर वो बीएसओ जो है वो करेगा, डिपॉज़िट स्लिप भरेगा, फ्रॉड इससे होते हैं। तो एक टीम डेवलप करनी चाहिए जो खुसूसन इसकी अवेयरनेस मुसलसल क्रिएट करती रहे, और कोशिश ये करें कि लोग एटीएम से निकल के मोबाइल फ़ोन पे आ जाएँगे। लेकिन ये टारगेट जो है ना ब्रांच मैनेजर को ना दें आप। उनके ऊपर तो पहले ही बहुत सारे क्रॉस बैंकिंग के प्रोडक्ट्स आ रहेंगे। वो लेट देम डू द कोर बैंकिंग। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कभी अगर आपके ताल्लुकात इंशाल्लाह हों जरूर, दैट्स अ कि। गुड सजेशन। जी, जी। तो इस पे मैं फीडबैक भी दूंगा, जी। इंशाल्लाह। मेरा ख़्याल ये है कि हम इससे और बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? नहीं नहीं बजा, आप सही कह और रहे हैं। एक चीज़ पे मीज़ान ने काम नहीं किया, वो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में काम हुआ है, छोटा एटीएम वगैरह के ऊपर, कि एटीएम से ₹10 और ₹20 भी दुकान के ऊपर आदमी परचेज़ कर ले, इस पर कोई इस तरीके से काम नहीं होता। अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, कभी अगर आपकी मुलाकात हो एडवाइस कीजिएगा कि अल्टीमेटली इसको आना है, और हम हर चीज़ में फँस रहे हैं। देखिए हर चीज़ में जो है ना कॉस्ट का एक फैक्टर आ जाता है। मुझे याद है जो पहला एटीएम है ना मीज़ान में, उसकी कॉस्ट थी $25,000, और आज जो हम एटीएम लगाते हैं वो 2.5 या $3,000 का लगता है। ओके, ये जो फ़ोन है हमारा, राइट, ये इसका प्राइस पॉइंट अभी स्मार्टफोन
इस हद तक सस्ता हो गया है, because you need a smartphone to do banking जी 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 transactions, जी right? जी So now it's a tipping point, जी right? एक tipping point पे आ गए हम, जो the price of these cell phones, tablets, etc. have come so low, and devices like ATMs, etc., that inshallah जो आपने अभी इंडिया की बात की, तो that is going to come. It's a question of the investment and cost. सर आपने बात की ना भी एटीएम $25,000 का आता था, ठीक है। आज भी अच्छी एटीएम मशीनें जो हैं खुसूसन अगर कैश रिसीव करने की सूरत से खासी महंगी आती हैं, जहाँ रखेंगे आप वहाँ भी मसाइल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हमारे आपने जो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी दे दी है, तो उसमें एक आदमी मोबाइल फ़ोन उसको स्मार्टफ़ोन जो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। वो खुद करेगा। सिंपल वो जो आपके पास फैसिलिटी मौजूद है कि उसको टैप करने के बाद, उसको स्कैन करने के बाद अपने अकाउंट से डेबिट करवा दे। इस चीज़ को अगर हम प्रॉपर्ली कैश करें और इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें और मर्चेंट्स को एजुकेट करें, तो मेरा ख्याल है एटीएम की ज़रूरत हमारी कम हो जाएगी इसके बाद ये। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हो रहा है तस्लीम साहब। देखें, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली गूगल पे पाकिस्तान में आ जी गया जी है, जी 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 राइट? इनफैक्ट मीज़ान बैंक जो हमारा जो कार्ड है, इट्स अ टैप एंड पे कार्ड, जी राइट? जी एनएफएस टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी। तो वी हैव हैड दिस टेक्नोलॉजी फॉर मेनी इयर्स, लेकिन द इशू वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट जो नहीं आपका जो नहीं, आई एम सॉरी, कुछ अवेयरनेस की कमी भी है। अवेयरनेस की कमी, आई एग्री। वजह मैं आपको बता दूँ, सीधी सी बात है ये कि टैप एंड पे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, हाँ। मुझे डर लगता है। क्यों? इसलिए कि टैप एंड पे में मुझे मालूम है कि उसको मुझे कोड, पासवर्ड कोड अगर मैं नहीं दूंगा किसी वजह से ये, तो अगर मेरा मोबाइल फ़ोन अगर हैक हो जाएगा तो मुमकिन है पता नहीं क्या निकल जाए। हालांकि ये मेरे इल्म में है कि आपके सॉफ्टवेयर में गुंजाइश है कि जहाँ पे एक लिमिट रखी हुई है कि इससे ऊपर जो है ना विदाउट पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। एम आई करेक्ट? करेक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक दिन मैं एक मर्चेंट के पास गया और मैंने उसको अपना मोबाइल फ़ोन दिया जिस वक़्त ये, ठीक है? उसने जैसे ही कार्ड लेके जो भी करने के बाद किया कि जी यू डोंट नीड टू एंटर योर ओटीपी। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग इंसाइट। देखिए, इस पे आपके इल्म में शायद होगा, या मैं आपको बता दूं, जो now you have very sophisticated fraud management software, जी, जी। okay, which is running in the background. जो 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 आप जो ये टैप एंड पे की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक तो वीज़ा है, एक मास्टर कार्ड है, जी, एक पे पैक है, 3 है। जो पेपैक हमारा ओरिजिनल पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, जी। राइट? और मास्टर वीज़ा में अगर मैं आपको कोई पेमेंट करूँगा मास्टर कार्ड से तो बाहर होके फिर वापस आएगी ये। बाहर होके वापस भी आएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो जो बैंक में जो है ना, नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड क्वाइट सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट? मेरा तो इश्यू सिर्फ़ और था कि जो फैसिलिटी हमारे पास है, इसमें मेरे ख़्याल है काम करना चाहिए और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए और छोटे कस्टमर को अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए कि वो ₹100-50 की ट्रांज़ैक्शन भी मर्चेंट और कस्टमर बेस्ड ऑन आवर मोबाइल फ़ोन वो ठीक है, डायरेक्टली कर लें इसको। ठीक है, जी, अग्री। ठीक है। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह जी। मैं फीडबैक भी दूंगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूँ कि आपने कहा मीज़ान एक फैमिली कल्चर है। क्या इस फैमिली कल्चर को रिटायरमेंट के साथ ख़त्म होना चाहिए या रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को भी किसी न किसी तरीके से कोई मॉनेटरी टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से उनको एंगेज रखना चाहिए और उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, यकीनन देखें, एज इज़ रिलेटिव, राइट? अल्लाह का शुक्र है, अम, अगर हेल्थ आपके पास है, जी, एनर्जी है, तो यकीनन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल some printing work. So मुख्तलिफ formulas हैं, there are different experiments that can be done जी, to engage some of these people productively, जी। and also maybe stay busy or contribute. क्या हमारे बैंकिंग सर्विसेज़ 2-3 किस्म की होती हैं। एक कोर बैंकिंग सर्विस जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा उसको सप्लीमेंट करने के लिए इसको हम आउटसोर्स भी करते रहते हैं इस चीज़ों को, एचआर रिलेटेड सर्विसेज़ जो कि हम आउटसोर्स करते हैं, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स से कि कोई आदमी अगर फर्ज़ करें कि उसके अंदर है, एसएमई फाइनेंसिंग वगैरह के अंदर है, तो आपको बहुत सारा मार्केट से चेक लेना पड़ता है। आप इसको इनकरेज करेंगे कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ अपने तौर पर ऐसी कोई एफटीसी मैनेजमेंट कंपनी की तर्ज की कोई चीज़ बनाएँ, ताकि जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज़ जो हैं, जो हम दूसरों से करवाते हैं, उससे वो खिदमात ली जा सकें। हम्म। के मीज़ान को इनकरेज करना चाहिए कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम बाहर से सर्विस रिक्वायर बहुत सारी होती है सर्विस, टी बॉय की, इसकी, उसकी लेना-देना। अगर आपका कोई एरिया मैनेजर फ़र्ज़ करें मुल्तान में रिटायर हो चुका ही है
और अगर वो वहाँ पे मुल्तान के अंदर अपना कोई छोटा सा कोई ऐसी सर्विस बनाता है तो हमें उसको तरजीह देनी चाहिए कि भाई इनसे कम से कम नोन डेविल इज बेटर देन अननोन। See, that's fair, Tasim Saab, and it's fine. I think, but the decision has to be with the present management. आज 25 साल बाद मीज़ान बैंक छोड़ने के बाद मुख्तसर अल्फाज में जो हमारे 18,000 साथी बैठे हुए हैं मीज़ान बैंक में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही पैगाम होगा। जी वो पैगाम ये है जो हम एक मिशन और कॉज को लेके चले थे। जी सो स्टे ट्रू टू दैट कॉज। जी ओके, बिकॉज हमने कभी पर्सनल मफाद को कभी नहीं देखा और हमने कॉज के लिए काम किया, राइट? बिल्कुल सही बात। सो आई वुड से दैट प्लीज never forget that you are working for a cause, and at the same time मैं ये कहूँगा जो वैल्यूज जो है ना मीज़ान बैंक के, जी बिल्कुल राइट, आप वैल्यूज को कभी ना भूलें। जी ओके, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जी दे क्रिटिकल, बिकॉज 18,000 एम्प्लॉई हैं, कल इंशाल्लाह 20 25 30 हो जाएंगे। यू नो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, जी। एवरीवन हैज अ डिफरेंट और डिफरेंट कल्चर से आया हुआ कल्चर, राइट? तो हमें इस कल्चर को बरकरार रखना और इसको मेंटेन करना जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एंड इनफैक्ट जो मेरी जगह पे जो आए हैं सैयद आमिर अली साहब, जी जी who will also be taking over as the CEO on Irfan Saab's eventual retirement later this year. आमिर साहब से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर मैसेज देता हूँ उनको, जो योर challenge is to maintain and ensure that staff remain aligned, जी। that we remain aligned and true to the vision and mission of Mizan Bank. अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं आरिफ साहब से आपसे कहना चाहूँगा कि जो एज आपको और इरफान साहब को था वो सैयद आमिर अली को भी है कि उनके पास काफ़ी टाइम स्पैन बाकी है अभी, मतलब जी। एज वाइज, जी ठीक है, जी, और उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। yeah. तो मेरी ब्लेसिंग सैयद आमिर अली साहब के लिए है। हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जहाँ सफ़र छोड़ा है आपने और इवेंचुअली इरफान साहब ने, तो लेवल नेक्स्ट पे लेके जाएंगे सैयद आमिर अली साहब ये, जी कि वो तो माशाल्लाह बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी चीज़ है। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जब वो आए थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर से बैठ गया था, लेकिन जिस तरीके से वो एक-एक चीज़ों को लेके बैठे थे, मैनुअल रिवाइज सब किया था, वो पूरा बैंक को इन एंड आउट जाते हैं। तो अब बड़ी ज़िम्मेदारी सैयद आमिर अली के ऊपर भी आती है ऑफ कि कोर्स, जितना वो जानते थे ऑफ कोर्स, और उस पे इत्मीनान न रखें, बल्कि उसको बैंक को आगे लेके जाएँ। इंशाल्लाह। और मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि अफ़राद की कोई अहमियत नहीं है। मैं मीज़ान बैंक में नहीं हूँ, आरिफ साहब मीज़ान बैंक में नहीं है, कल को इरफान साहब भी मीज़ान बैंक में नहीं है। हम सबको इदारे का मफ़ाद देखना है, इदारा अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और मुझसे आरिफ साहब ने वादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ पे चाहे मुझे आपके घर जाना पड़ जाए यहाँ इतनी दूर लाने के बजाय समुंदर के उस पार। समुंदर, आप तो बहुत दूर रहते हैं। कि ज़ैगम साहब मेरा जुमला बहुत दोहराते हैं कि मैंने उनसे कहा था, जब मैंने कहा यार तुम बहुत दूर रहते हो, मैंने कहा दूर मैं नहीं रहता हूँ, आप दूर रहते हैं। आप दूर रहते हैं, मैं तो आँख खुलती यहीं पे होता हूँ। आप लोग कोई शहबाज में बैठा है, कोई बादवान में बैठा है, तो इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होते रहेंगे आपस में, और इसमें मुझे जाने का कोई मसला नहीं किसी अंदाज़ से। लेकिन ये कि मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और करूँगा, वो ये कि जो अब जिस स्टेज आप हैं एज़ रिटायर्ड एम्प्लॉयी, मीज़ान के रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर इंशाल्लाह। इसमें मेरा भी कोई ज़ाती मफ़ाद नहीं है, इसमें आपका भी कोई ज़ाती मफ़ाद नहीं है, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ कि अगर ऐसा कोई फ़ोरम बनता है, तो उस पे मैं किसी किस्म का, मैं तो 4.5 साल की नौकरी की थी, 5 साल का तो चाहिए ना कम से कम ये, तो मेरा किसी किस्म का कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीज़ान के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और हम लोग मिलके उसके ऊपर मीज़ान के लिए काम करें। ज़रूर। तो आप दुआ ये करें जी, जो बस मीज़ान जो है ना जिस रफ्तार से हम जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ पे हम आज पहुँचे, इसी रफ्तार से मीज़ान आगे चलता रहे। मीज़ान के साथियों को ये समझना पड़ेगा कि एक पेंडुलम इम्पैक्ट भी होता है, कि जब आप टॉप पे पहुँच जाते हैं तो ज़ाहिर है टॉप से ऊपर जाने से रिटेन कैसे करना है। देखिए सक्सेस की कंप्लेसेंसी तो आती है, आपको पता है, आपने हमें कई दफ़ा ट्रेनिंग बताया कि इसके सक्सेस के नुकसानात क्या-क्या होते हैं, करेक्ट, ठीक है? अब ये चीज़ें लड़कों को समझने की हैं, और मेरा ख्याल है टीम लेड बाय सैयद आमिर अली साहब वो इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करेगी। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आज की हम किस्से यहीं पे रोकते हैं, जज़ाकल्लाह तस्लीम। लेकिन चलता रहेगा।